پروازوں میں کمی اور مختلف وجوہات کی وجہ سے پچھلے سال کے مقابلے میں لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ کون سا لاجسٹک ماڈ قیمت کے اعتبار سے زیادہ مؤثر ہے؟ چین اور پاکستان کے مابین رسد کے میدان میں اور کیا وسعت دی جا سکتی ہے؟ بصری شناختی نظام کی اپ گریڈیشن کے ساتھ لاجسٹکس کے میدان میں بغیر انسانی مداخلت ٹیکنالوجی کی ترقی کا کیا امکان ہے؟ سی پیک کے حوالے سے حقائق پر روشنی ڈالنے میں میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں سی پیک پاکستان میں مقامی پہچان بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے قومی دن کے موقع پر ہم پاکستانی مصنوعات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، چین میں ٹور نمائشوں کا انعقاد ہے۔ 2021 میں ہم چین میں 4 سے 5 ٹور ایگزیبیشنز کے انعقاد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر اتوار کی شام 6:30 بجے آپ سب کو پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج 2 مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، جناب محمد اصغر جو کہ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے چیئرمین چیف ریپرزینٹیو ہیں، اور پروفیسر عبید الرحمان صاحب جو پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ میں پروفیسر ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا ٹریڈ۔ کووڈ-19 وبا کے سبب پاکستان کی بین الاقوامی نقل و حمل کی صنعت کی مجموعی آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کے اعداد و شمار بیورو پی بی ایس کے مطابق مالی سال 2020-21 کے پہلے 3 ماہ کے دوران پاکستان نے مختلف ممالک تک مختلف ٹرانسپورٹ سروسز کے ذریعے $109.20 ملین کمائے۔ مالی سال 2019-2020 کی اسی مدت کے دوران ٹرانسپورٹ سروسز کے $196.14 ملین امریکی کے مقابلے میں اس میں 48.55% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ سمندر کے ذریعے شپنگ سروسز میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 373.80% اضافے سے 31.46 ملین امریکی کا اضافہ ہوا ہے۔ جولائی تا ستمبر 2020-2021 کے دوران ہوائی نقل و حمل کی برآمدات میں 64.87% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاک چین ملٹی نیشنل لاجسٹک انڈسٹری کو صلاحیت میں کمی اور دگنی لاگت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ میں چین میں رہائش پذیر پاکستانی دوستوں کے ساتھ شراکت داری سے پاکستانی دستکاری، فرنیچر اور روایتی ملبوسات فروخت کرتی ہوں۔ پاکستانی ملبوسات پاکستان کے شہر اسلام آباد سے براہ راست چین کے شہر گوانگچو بھیجے جاتے ہیں اور پھر گوانگچو سے چین کے تمام علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ ہوائی نقل و حمل کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ پروازوں میں کمی اور مختلف وجوہات کی وجہ سے پچھلے سال کے مقابلے میں لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر چین اور پاکستان کے مابین ہوائی، سمندری اور زمینی نقل و حمل کے نیٹ ورک میں لاگت کے اعتبار سے شپنگ ابھی بھی زیادہ مؤثر ہے، جو چینی اور پاکستانی کاروباری اداروں کی ترجیح ہے۔ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے آلات، گاڑیاں، پتھر، سٹیل سمیت دیگر مصنوعات کے لیے اس وقت سمندری نقل و حمل ایک اچھا ذریعہ ہے۔ زمینی آمد و رفت بھی دستیاب ہے، لیکن سمندری نقل و حمل کے مقابلے میں لاگت بہت زیادہ ہے۔ چونکہ سامان کی قیمت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ہوائی نقل و حمل بہتر انتخاب نہیں ہے۔ پاکستانی پھل سمندری راستے سے بھی برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں فریزر یا ریفریجریٹڈ کنٹینرز میں سمندر کے راستے چین منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ پھلوں کے لیے عام طور پر 0 سے -5 ڈگری درجہ حرارت مناسب ہوتا ہے۔ شپنگ لاگت 100 سے 200% زیادہ ہوگی، لیکن ہوائی نقل و حمل کی نسبت یہ پھر بھی کم ہے۔ چین کے اندرون ملک شہر جہاں سمندری راستے سے نہیں پہنچ سکتے، پاکستانی کمپنیاں انٹرنیشنل روٹ کا انتخاب کیسے کریں؟ بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے لیے کنٹینر ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹیشن سب سے معقول اور کم لاگت طریقہ ہے۔ کنٹینرز صوبہ سچوان کے نے جیانگ سے صوبہ گوانگشی کی چنگ چو ایسٹ اسٹیشن پورٹ پر ریل کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں اور چنگ چو پورٹ سے سمندری راستے کے ذریعے جنوب مشرقی ایشیا کے مختلف مقامات پر ترسیل کیے جاتے ہیں۔ چھینگدو یورپ پلس آسیان مال بردار ٹرینوں کو نے جیانگ سے چنگ چو پورٹ ایسٹ اسٹیشن جانے تک صرف 60 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ چھونگچنگ یا لوچو بندرگاہ کی 2 ہفتوں کی روایتی سمندری نقل و حمل کے مقابلے میں کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اعلیٰ سطحی مصنوعات جیسے کولڈ چین کی لاگت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے صنعتی پروسیسنگ کے لیے استعمال ہونے والا سوڈیم سلفیٹ
इसी रास्ते कराची बंदरगाह भेजा जाता था। इसमें 20 से 25 दिन लगते हैं, जो आम नकलो हमल की निस्बत तकरीबन 50% ज्यादा तेज है। मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के माबैन लॉजिस्टिक तावन को कैसे बढ़ाया जाए? हमें गवादर पोर्ट के जरिए नकलो हमल के तरीकों के हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। उम्मीद है कि इस बारे में मजीद मालूमात हासिल होंगी। इसके अलावा वस्ती एशिया में तरसील के लिए भी कराची पोर्ट अहम बंदरगाह है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के माबैन बराह रास्त रेल का कोई राब्ता नहीं है। अगर दोनों ममालिक रेलवे के रास्ते जुड़ जाएं तो नकलो हमल की पूरी लागत को मौसर तरीके से कम किया जा सकता है। अगर चाइना यूरोप माल बरदार ट्रेनें पाकिस्तान पहुंच जाएं तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और मगरबी चीन के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी। अगर सड़क के जरिए तेज तर नकलो हमल हो सके तो इसमें अब भी तरक्की का एक बहुत बड़ा इम्कान मौजूद है, क्योंकि सड़क के जरिए नकलो हमल में वक्त बहुत कम लगेगा और कोल्ड चेन नकलो हमल को भी यकीनी बनाया जा सकता है। उसके लिए अगर आप बर्री उसको देखेंगे तो आप सड़कें बेहतर कीजिए। कराकोरम हाईवे जो है वो अगरचे पहले ही तामीर की जा चुकी है और वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया है। फिर उसके बाद हवाई जहाज़ों को अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक हफ़्ते में 2 या 3 जहाँ पे चल रही हैं तो वहाँ 5 या 6 जो परवाज़ें हैं वो चलानी चाहिए। फिर उनके किराए कम होने चाहिए। पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में बहुत सारी शाहराएँ तामीर हो रही हैं और जो मवासलात के ट्रांसपोर्ट के जो दूसरे ज़राए हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब से चीन ने ऑटोमेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी लॉजिस्टिक में शामिल किया है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ गई है, काम भी आसान हुआ है और इसकी जो लागत है उसमें भी कमी आई है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस शोबे में भी पाकिस्तान चीन से बहुत ज़्यादा सीख सकता है। हालिया बरसों में चीन में इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक को बड़ा फ़रोग़ मिला है और इस तरह की जो लॉजिस्टिक्स की बुनियाद हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI या GPS वगैरह इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स ने मुआशी तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPEC मेड। चीन के स्टेट पोस्ट ब्यूरो के मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक 21 दिसंबर 2020 को चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी का सालाना कारोबारी हजम पहली बार 80 बिलियन टुकड़ों से तजावज़ कर गया। 21 दिसंबर 2020 में पहली बार एक्सप्रेस कारोबारी हजम मुसलसल 50 अरब, 60 अरब, 70 अरब और 80 अरब से तजावज़ कर गया। स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का अमल एक्सप्रेस इंडस्ट्री को तब्दील कर रहा है। टर्मिनल की तकसीम के लिंक में नई टेक्नोलॉजीज जैसे बगैर ड्राइवर गाड़ियां, ड्रोन्स, स्मार्ट स्टेशंस और स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस ज्यादा मशहूर हो रही हैं। ये दोनों मुकम्मल तौर पर बगैर ड्राइवर के लॉजिस्टिक्स गाड़ियां हैं। इनमें L4 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब ये है कि इन्हें किसी भी कार्रवाई के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। आम कारकुन टच स्क्रीन के जरिए एक क्लिक के साथ आगाज करते हैं और बगैर ड्राइवर लॉजिस्टिक्स गाड़ी खुद ब खुद मंजिल के मुताबिक रास्ते की मनसूबाबंदी करेगी, खुद ब खुद सड़क के बीच में आने वाली रुकावटों से बचेगी और फिर A to B पॉइंट तक अशिया की तरसील का काम मुकम्मल करेगी। ये एयर लॉजिस्टिक्स सिस्टम है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और लटकाने के लिए जगह का इंतखाब करते हैं। चूँकि हैंगर में चिप्स इंस्टॉल होती हैं, इसलिए पूरे अमल को ट्रैक किया जा सकता है और इसके तमाम आदाद-ओ-शुमार को तलाश किया जा सकता है। हमारे आलात के जरिए कारकर्दगी में 10% से 30% तक इजाफा किया जा सकता है। हम जून में सामान की खुद कार नकलो हमल को यकीनी बना सकते हैं। ये खाने की तरसील, पैकेजेस और आम ज़रूरियात की फराहमी की तकसीम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्फिन की ज़रूरियात के मुताबिक हर कंटेनर का साइज़ अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जा सकता है। न्यू एनर्जी बैटरी से चलने वाली ये गाड़ी एक चार्ज में तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री ढलवान चढ़ सकती है। बसरी शनाख्ती निज़ाम बगैर ड्राइवर गाड़ी की हिफाजत को यकीनी बनाता है।
इस वक्त गहरे मुताले के साथ कदम ब कदम इंसानी बसारत का एहसास किया जा सकता है जो मसनूई आसाबी नेटवर्क पर मबनी है। हम बसारत के ज़रिए पोजीशनिंग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अशिया की दर्जाबंदी और रुकावटों से बचाव और इसके साथ साथ रास्ते की मनसूबाबंदी की जा सकती है। हमारी मसनूआत को बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ढलवान, लिफ्ट और 2 मंजिला इमारत। लड़ा दरअसल हमारी गाड़ी का बुनियादी हिस्सा है। ये गाड़ी को रुकावटों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई इसके करीब आता है तो गाड़ी उसकी निशानदही कर सकती है और खुद ब खुद हकायक पर मबनी फैसला कर सकती है। बगैर ड्राइवर गाड़ियों की मौजूदा मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा लडा यानी ऐसा रिडार सिस्टम जिस पर लेज़र शुआएं इस्तेमाल होती हैं के अखराजात में कमी पर मुनहसिर है। मुस्तकबिल में बगैर ड्राइवर गाड़ियां सस्ती और ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। पाकिस्तानी मार्केट में बगैर ड्राइवर गाड़ियों की कामयाबी के क्या इम्कानात हैं? जुनूब मशरकी एशिया के मुमालिक में हमारे आउटलेट्स हैं जिसमें 200 से ज़ायद अफराद का अमला कारोबारी इंतजामात संभाल रहा है। हम गाहकों की मर्जी के मुताबिक मसनूआत मुहैया करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हमारी मसनूआत बुनियादी तौर पर जूतों और मलबूसात की सनत में इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरे ममालिक में हमारी मसनूआत बड़ी मिकदार में फ़रोख्त हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अगले मरहले में हमारा कारोबार बेल्ट एंड रोड रूट से जुड़े ममालिक तक बढ़ाया जा सकेगा। अब मुस्तकबिल तो इसी का है जी। जो जो वक्त आगे बढ़ रहा है हमें ये लगता है कि बहुत सी चीज़ों पे ये रोबोट्स और ये चीज़ें हावी हो जाएंगी और इंटेलिजेंस जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका गलबा होगा। चीन का एक अपना जो तजर्बात हैं उनसे पाकिस्तान बहुत कुछ सीख रहा है और चीन इस मामले में बहुत तरक्की कर चुका है, बाकी दुनिया से एक कदम आगे है। तो वो अगर पाकिस्तान उसके नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हीं चीज़ों को अपने यहाँ मुतारिफ़ करवाता है तो बेपनाह नए मौक़े वहाँ पे पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो हमें अब ये देखना है कि हम अपने यहाँ चीज़ों को बनाएं और उन्हीं को तरजीह दें और उन्हीं को इस्तेमाल करें, तो इससे मुल्क की मईशत जो है वो यकीनन आगे बढ़ेगी। और उसमें सिर्फ यही नहीं है, उसमें सनती शोबे में तरक्की होगी, उसमें मुलाजमतें मज़ीद पैदा होंगी। बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनियाँ वो आगे आ गई हैं, मैदान अमल में आ गई हैं। तो आप देखिएगा अगले चंद सालों में पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर इस शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। वबा के बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने कसीरल जहती तावन के एक अहम जुज़्व के तौर पर आलमी मुआशी बहाली, आलमी सतह पर सेहत-ए-आमा की इंतजामिया को बेहतर बनाने और सब्ज़ तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। B&R इनिशिएटिव के एक अहम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए भरपूर तावन फराहम किया है। इस साल वबा फैलने के दौरान CPEC ने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के 80% सनती इलाकों पर मुहित है, जिससे 78% सनती आबादी मुस्तफीद हुई है। मकामी लोगों के लिए रोजगार के बहुत मौके पैदा हुए हैं और पाकिस्तान की सनतो मईशत को मुताद्दिद फवायद हासिल हुए हैं। हम चीन और पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक़े राय की बुनियाद पर राहदारी की तामीर में तीसरे फरीक के साथ ताउन करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में CPEC 2 ममालिक से आगे बढ़ जाएगा और वसी पैमाने पर मजीद ममालिक को फवायद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। CPEC की तामीर में अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते के एक अहम जुज़्व के तौर पर दोनों ममालिक के मीडिया ने एक अहम किरदार अदा किया है। CPEC के हवाले से हकाइक पर रोशनी डालने में मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में CPEC पाकिस्तान में मकामी पहचान बन गया है। CPEC आला तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और मीडिया ताउन की वसी गुंजाइश मौजूद है। चीन और पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि वो CPEC और चीन पाकिस्तान दोस्ताना ताउन को अच्छे तरीके से बयान करे और बैनुल अक़वामी बरादरी को CPEC के बारे में बेहतर तौर पर आगाह करे।
सी पैक मंसूबों में मुस्तकिल तरक्की हो रही है, मीडिया के राब्ते भी ज़रूरी हैं। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के मीडिया, तालीमी हलकों और मुहक्किकीन के माबैन तबादलों और ताउन को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत है। आलमी मुआशी बदहाली के पस मंजर में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सी पैक समेत चीन की मजमूई सरमायाकारी बढ़ी है, लेकिन इस मंसूबे के हवाले से गैर मुल्की मीडिया की गलत खबरों का सामना भी है। मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान का मीडिया एक पुल की हैसियत से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करेगा और दुनिया को हमारे मुश्तरका सफ़र में सी पैक के विन विन कोऑपरेशन और आला मयार की तरक्की की हकीकत को दिखाएगा। चीन और पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों को दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करने और पाकिस्तान के तवानाई बहरान से निमटने के लिए सी पैक की कामयाबियों को उजागर करने, तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर की वुसअत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुआशरती और इक्तसादी खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए एक गैर जानिबदार, मुत्तहिद और मुस्तहकम मीडिया हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है। कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई में मीडिया का किरदार अहम है। इस वक्त साइबर स्पेस में बड़े पैमाने पर मालूमात और डेटा मौजूद है, लिहाजा मालूमात की दुरुस्तगी खास तौर पर अहम है। वबा के बाद मीडिया को कैसे तरक्की करना चाहिए? कोविड-19 वबा एक सदी में अनदेखी अहम तब्दीलियों को मुतहर्रिक कर रही है। वबा और सुस्त मईशत के तहत कुछ ममालिक में मकामी रुझानात, यकतरफगी और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के पेश नज़र दुनिया का मीडिया भी गहरी तब्दीलियों से गुजर रहा है। दोनों ममालिक के मीडिया को चीनी और पाकिस्तानी आवाम के माबैन दोस्ती के किस्से मज़ीद गहराई और वजाहत से सुनाने चाहिए। चैनल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से सीखने के अमल को मजबूत बनाते हैं और मीडिया इंटीग्रेशन के रुझान की पैरवी करते हैं। अगरचे वबाई मर्ज ने लोगों के दरमियान तबादलों को महदूद कर दिया है, लेकिन इंटरनेट ने रुकावटें तोड़ दी हैं, मालूमात को काबिल रसाई बनाया है और लोगों के माबैन फासला कम किया है। इसने कोविड-19 के खिलाफ आलमी जंग में एक अहम किरदार अदा किया है। इस वबाई मर्ज ने दुनिया की एक सदी में अनदेखी तब्दीलियों को तेज किया है और डिजिटल मईशत और डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरक्की को तेज किया है। ये न सिर्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका भी है। सबसे पहले असगर साहब, आप एक बहुत तजर्बाकार सहाफ़ी हैं और इस वक्त चीन में भी तैनात हैं, तो आपके ख्याल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया के जो ताउन है उसको हम कैसे फ़रोग़ देना जा सकते हैं? जी, जो मीडिया का ताउन है वो बहुत ही उसकी अहमियत है और पाकिस्तान और जो चीन है इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में बहुत सारे जो चीनी अखबारात हैं और उनके टेलीविज़न चैनल हैं या दूसरे जो मीडिया के जो ज़राए हैं, तो वो पाकिस्तान में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ताउन जितना बढ़ता चला जाएगा, ये दोनों ममालिक के लिए और उनके अवाम को मज़ीद करीब लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो फिर आपके ख्याल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो सकाफती तबादले हैं उनको कैसे फ़रोग़ दिया जाना चाहिए? अब बहुत सी चीज़ें, एक तो फिल्म है, जैसे अभी एक फिल्म पिछले दिनों चीन के सिनेमा घरों में चली है और पाकिस्तान में चीनी खाने बड़े मकबूल हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और दीगर शहरों में। इसी तरीके से पाकिस्तानी खाने भी चीन में बड़े मकबूल हैं, ख़ास तौर पर बीजिंग में और शंघाई में और कुछ और शहरों में भी। मैंने जहां कुछ शहरों का दौरा किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तानी खाने चीन के दीगर शहरों में भी दस्तयाब हैं। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। पाकिस्तान पेविलियन के ऑपरेशन के दौरान 2021 में हम बाकायदा सरगर्मियां मुनक्कद कर सकेंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल और मैच मेकिंग इवेंट वगैरह। चाइना कुनमिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इंपोर्ट कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर साओखे जियान ने कहा कि 2021 में चीन जनूबी एशिया एक्सपो में जनूब और जनूब मशरकी एशियाई नुमाइश कुनंदगान के लिए तबादलों और फ़रोग़ की सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा।
建立起一个管道来吧。 2021 में हम चीन से मुख्तलिफ ममालिक की मसनूआत मुतारिफ करवाने के मुताद्दिद तरीके अपनाने का इरादा रखते हैं। एक ये कि हम हर मुल्क की खुसूसी नुमाइशों को हर माह या एक मखसूस मुद्दत के अंदर फ़रोग देंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर हम पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग दे सकते हैं। दूसरा, चीन में टूर नुमाइशों का इनेकाद है। 2021 में हम चीन में 4 से 5 टूर एग्जीबिशंस के इनेकाद का इरादा रखते हैं। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी इदारों को इकट्ठा करेंगे ताकि वो बड़े पैमाने पर नुमाइशों का आगाज़ कर सकें और चीन की नुमाया नुमाइशों में जाएं। इसके अलावा 1 से 2 बैनुल-अक़वामी टूर नुमाइशें भी होंगी। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की मसनूआत मलाइशिया और मलाइशिया की मसनूआत पाकिस्तान ले जाएंगे। इसका मतलब है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात कायम करते हैं। इस वक्त यहाँ 18 ममालिक के बूथ हैं। हम इस प्लेटफॉर्म की सलाहियत को हर मुमकिन तरक्की देंगे। चीन की जनूब मगरबी सरहद में वाक़े सूबा यूनान की सरहद 4000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है और जनूब मशरकी एशिया के मुतअद्दिद ममालिक से मुल्हिक है। चीन के कौमी आदादोशुमार के ब्यूरो के मुताबिक 2019 में सूबा यूनान की GDP 2322.375 बिलियन युआन रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8.1% का सालाना इजाफा हुआ है। इसमें खुनमिंग की GDP सबसे ज्यादा है, जो 600 बिलियन युआन से तजावज कर गई और पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6.5% के इजाफे के साथ 647.588 बिलियन युआन तक पहुंच गई। इसके अलावा ये बात भी काबिल जिक्र है कि यूनान की 25 बॉर्डर काउंटियों और शहरों में GDP की औसत सालाना शरह नमू 10% तक पहुंच गई, जो पूरे यूनान सूबे की औसत सतह से 1.2% ज्यादा है। आइंदा 5 बरसों में बुनियादी ढांचे की तकमील और बेहतरी के साथ यूनान के हमसाया ममालिक की बैनुल-अक़वामी तिजारत की तरक्की के इम्कानात बढ़ेंगे। दर हकीकत पाकिस्तान चीन के वन बेल्ट वन रोड का एक अहम मकाम है और खुनमिंग भी एक मरकजी शहर है जो जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में अहम मकाम रखता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चीन में दाखिल होने के लिए खुनमिंग को एक मरकज बनाया जाए। यूनान के आसपास के शहर नुक्तों की मानिंद हैं और ये बिखरे नुक्ते खुनमिंग में इकट्ठे हो जाएंगे और मुस्तकबिल में ये मुश्तरका तौर पर मुतहर्रिक होंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक ने खिदमात की तिजारत जैसा कि तालीम और सैरो सयाहत के मैदान में तेजी से तरक्की की है। इस वक्त यूनान में जनूब मशरकी एशिया की मुख्तलिफ कौमों और जनूब एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों बैनुल-अक़वामी तालिबे इल्म मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से तालिबे इल्म पाकिस्तानी हैं। मुझे यकीन है कि जूं-जूं दोनों ममालिक के माबैन तबादले गहरे होते जाएंगे, बाहमी मुतालिया और तालीम के मैदान में तबादले और ताउन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। सौखी जियान ने कहा कि दरअसल 2020 में तरक्की के बहुत से मंसूबे थे, लेकिन उनमें से बेशतर वबा की वजह से रुक गए। ताहम बहुत से मुतालिबात अब भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी मसनूआत और सरमायाकारी को चीनी मार्केट में लाने की फौरी जरूरत है। वबा की वजह से ये मुतालबा पूरा नहीं किया जा सका, लिहाजा हम इन मुतालबात को पूरा करने के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। चूँकि हमारे अपने मंसूबे यूनान फ्री ट्रेड जोन में रजिस्टर्ड हैं, लिहाजा हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद तिजारती कंपनियां फ्री ट्रेड जोन में मुख्तलिफ तरजीही पॉलिसियों से भी लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर हम बॉन्डेड एग्जीबिशन मुहैया करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बैरूनी ममालिक के कारोबारी इदारे चीनी मार्केट में दाखिल होते हैं तो उनकी मसनूआत को हमारी जनूबी एशिया की कंपनी के बॉन्डेड गोदाम में मुंतकिल किया जा सकता है और फिर वो बॉन्डेड गोदाम से तिजारती मरकज़ में मुंतकिल हो सकती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कारोबारी इदारों को एडवांस टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़रोख्त और लेन देन मुकम्मल होने के बाद सामान कस्टम क्लियरेंस से गुजरेगा। सौखे जान ने मजीद कहा कि 2021 के लिए प्रमोशन प्लान शुरू किया गया है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इसका इनेकाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हालात अभी चल रहे हैं तो उसके मुताबिक अगर उसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एफर्ट थी और इसमें ज़रूर गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश है।
لیکن بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں، دونوں ممالک مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی اشیاء کو چین میں زیادہ سے زیادہ اور پاکستانی تاجروں کو چین میں زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگلے سال جب یہ اس طرح کی نمائشیں منعقد کی جائیں تو دونوں آن لائن اور آف لائن دونوں رکھی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں اس میں حصہ لے سکیں۔ ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔